Hello everyone, this is Sumit Kumar and today I am going to tell you something about the counseling regarding IT, JAM and all that. See, look, yesterday that cutoff was declared and some of the students got some ITs and they were not happy with it, and some of them asked me that this is going to good or worst or best, all such nonsense. Look, why I am saying that nonsense is, you know, कोई भी आईआईटी अच्छा या खराब इसका मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है. आई डोंट हैव दैट डेफिनेशन टू डिफाइन दिस आईआईटी इज गुड, दिस आईआईटी इज नॉट गुड. आई डोंट हैव डेफिनेशन. इफ यू हैव, टेल मी दैट. एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, सो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं बाय योर इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट एल्जेब्रा में है, अगर आपका इंटरेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है, अगर आपका इंटरेस्ट रियल एनालिसिस में है, तब आप उस आईआईटी जो आईआईटीज आपको मिला है उस आईआईटीज को आप जाके देखो और उसको आप वहाँ के फैकल्टीज़ के प्रोफाइल को देखो, वहाँ के बच्चों से बात करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे जो अच्छा है, मुझे जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैथ्स का ये सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट के फैकल्टीज आर देयर उस आईआईटीज में है कि नहीं है. इफ देयर आर, देन आई शुड गो अहेड. अगर नहीं है तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं वहाँ अगर जाऊँगा आई विल बी हैप्पी और नॉट. क्योंकि अगर मुझे रियल एनालिसिस अच्छा लगता है एंड समवन इज गिविंग मी सम अदर मैथ्स बुक व्हिच आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी, will I feel comfortable? That you have to ask yourself. If you get the answer yes, you should go ahead. If you are not getting answer yes, you have to think again. What will be best? That I should not say. It's your opinion. No one will tell you. Everyone suggests you. Decision you have to take. So take decision wisely. See, this is already you got IITs. It's good thing. But now you should find your interest. कि कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेटर है, वो आपको आंसर मिल जाएगा. एंड द सेकंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू से, सेकंड थिंग इज, लुक, दिस इज द काइंड इंफॉर्मेशन दैट yes, even though you are not getting IITs, your rank is not good, this that all negative thoughts and your mind, I was thinking about these IITs, I was thinking about IISc, I didn't get the call and all that. No problem. Talk to your parents, take a break, and again you should take a fresh start with IIT JAM 2018. You know, at least you should say to your parents, look dad, I have done this and I have got IITs but I am not happy with it. Give me again second chance. I'll work hard enough and I'll go to that premium institute where I want to go. I'll work hard for that. Give me 1 year. Give me 1 more year. You know, otherwise you will just compromise yourself. And again you will go to IIT, you have to compromise with your subjects. That's important. Don't compromise with subjects. You should compromise with your food and all those things. It's okay. But don't compromise with your subjects. If you like some subject and if you are not getting that subject and that interest in that IITs and something, what is the benefit then? Only getting tags behind your back, IIT, this, that. It's not going to help in long run. I have seen several IITs in where my institute is, and sometimes I feel horrible. Man, this person is graduated from IITs, and even though their basics are not clear, then what is the benefit of getting IITs? So that's what I'm saying. Take a wise decision. It's not a crime that you got less rank. It's a good thing you got the less rank, but take it in positive way. So that in next year you should get the good rank in the sense where you want to go to that institute according to their cutoff. You should at least qualify that and go there and enjoy mathematics. You are taking this exam IIT JAM or TFR to make yourself happy. If you are leaving some universities, you should go to another university which has at least that exposure which you are not getting on that past universities. That's the only benefit you want. For example, like I was doing when my graduation from that university, I was not getting the exposure to get like conference and all that. I was always interested कि nowadays कौन सा research हो रहा है मैथ्स में. I was always interested in BSc टाइम की कौन से काम हो रहे हैं दुनिया में मैथ्स में जो मुझे नहीं पता है. वो सब का एक्सपोजर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा. वो मेरे लिए
अच्छे इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन वही था कि जहाँ इस टाइप का मुझे एक्सपोजर मिले। वो मुझे पता चला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और TFR है। TFR मीन्स TFR बॉम्बे एंड दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड सम अदर ISI and CMI। तो आई थॉट कि नो, अगर मुझे पढ़ना होगा मैथ, आई गो टू दैट इंस्टीट्यूट, अदरवाइज नो, नो कॉम्प्रोमाइज। क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ? अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया मैं उसे छोड़ के जगह पे जा रहा हूँ, तो आई शुड थिंक लाइक दैट, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट। आई विल चीट माई सेल्फ and cheating yourself is like a biggest crime. So think about it, you know, it's not a crime. सोच लो कि यार एक साल पैर टूट गया, हाथ टूट गया, क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क पड़ता है इससे आपका? एक साल आप ब्रेक लेके तैयारी करोगे तो थोड़ी ना आपको गोली से मार देगा कि नहीं नहीं आपने एक साल ब्रेक लिया, इसको हटा दो दुनिया से। Not like that. You are taking for yourself break कि आप कुछ अच्छा करेंगे आगे, तो उस चीज को करना चाहिए। बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जो भी आना चाह रहे हैं इस एरिया में, बहुत लोगों का इस टाइप का मेल आया है। आई एम क्वाइट हैप्पी दैट दे आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। दैट्स द ओनली इंटेंशन आई हैव। इसीलिए मैंने इस चीज को स्टार्ट किया नोबल फोरम को, ताकि आप लोग जैसे बच्चे जिनका रैंक अच्छा नहीं, वो अच्छा कर पाए, वो अच्छा सोच पाए कि नहीं भाई मैं भी IISc में पहुंच सकता हूँ, मैं भी TFR में पहुंच सकता हूँ। हाँ मैंने उस टाइप का हार्डवर्क अभी तक नहीं किया है, बट अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा। उसमें कुछ दिक्कत होता है आप पूछिए हमसे, आप आइए मेरे पास, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस चीज को। मैं डांटूंगा, कुछ भी करूंगा, बट आपका काम है पढ़ना, आप उस चीज को कीजिए, मत छोड़िए ना, मत ये सब चीज पे ज्यादा समय वेस्ट कीजिए कि कौन सा है अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। अच्छा आपके डेफिनेशन में होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपकी चीजों अकॉर्डिंग टू चीजें आपको मिल रही है कि नहीं मिल रहा है। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि नहीं देखिए पापा मैंने पास किया, मुझे इतना रैंक मिला, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, गिव मी अनदर चांस। क्या दिक्कत है? पेरेंट्स पर डांटेंगे, आपको नालायक बोलेंगे, बोलने दीजिए, उनका काम है, वो आपका टेक दिस एज अ ब्लेसिंग एंड अगेन टेक एज अ फ्रेश स्टार्ट। पॉसिबल है, विश्वास कीजिए पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। भैया हम लोग जाके आए, आप क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। आप उस टाइप का हार्डवर्क करना है, सही दिशा में करना है, बस मजदूरी नहीं करना है कि मजदूरी लिए करने लगे, मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट हार्डवर्क करना है कि चीज़ों को समझना कैसे, चीज़ों को बनाना कैसे है, वो चीज़ जरूरी है, उस पर बिलीव करना है आपको, और वो आप कर सकते हैं, ट्रस्ट में आप कर सकते हैं। बस एक बार आप आइए, सही चीज़ों से जुड़िए, उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ था, उस मिस्टेक अब आपके IIT JAM 2018 या TFR 2018 में ना हो, उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर आपको वर्कआउट करना है। डेफिनेटली अच्छा जगह मिलेगा जो आपके दिमाग में है, और वो होना चाहिए, वो होना भी चाहिए कि नहीं। मैंने IIT JAM का मतलब मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, IIT JAM का मैंने प्रिपरेशन TFR को ध्यान में रख के किया था। वो दो इंस्टीट्यूट जब तक नहीं मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या फर्क पड़ता है, 1-2 साल फेल ही हो गए, क्या फर्क पड़ता है इससे? कौन ना आपका क्राइम कर दिए आपने? अरे पढ़ रहे हैं तो एग्जाम दे रहे हैं तो 2 ही रिजल्ट हो गया, तो पास या फेल, एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लॉन्ग रन में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने बार एग्जाम दिया था, यस यू क्वालिफाइड। इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, ये इंटरेस्ट में ये सारे इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे वहाँ पढ़ना है, मेरे नज़र में ये इंस्टीट्यूट अच्छे हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ पर है। दैट्स डिफाइन गुडनेस ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स। Okay, so take a wise decision and go ahead, and best of luck for that, and don't ignore your talent. You know you are capable more than you know. So think about it and work hard. If you need guidance, I am ready to guide you. But don't compromise with your subjects. Don't ever and ever. If you love mathematics, do mathematics. In mathematics section, if you love algebra, do algebra. There is no crime at all. If you are getting some ITs, if there is no algebra fellows, why should join there? There is no meaning at all. Think about it, okay? And if you feel difficulty, come to me, I'll guide you. Okay? So on that note, I'm going to stop here, and best of luck for your future. Thank you for watching my videos. Thank you.